Hello everyone, my name is Priyanshi Jain and welcome back to my YouTube channel Be a Lab Scientist. This is the part 3rd of hemostasis in which we will discuss about the extrinsic pathway of coagulation. In part 1st of hemostasis, we have discussed about the meaning of hemostasis, what is the role of hemostasis in maintaining the equilibrium of blood inside the body. Then we have discussed about the vasoconstriction, what is the significance of vasoconstriction. Then we have discussed what are the types of vasoconstriction. In part 2nd of hemostasis, we have discussed about the formation of primary platelet plug. Then platelet adhesion means how platelets get adhere with each other. Then after adhesion, how platelets get activated. Then we have discussed about the role of von Willebrand factor in coagulation, how von Willebrand factor works, and what is the disease, what is von Willebrand factor disease, its significance, its role, and its diagnosis. Everything we have discussed in part 3rd. Then we have discussed about the granules of platelets, that is alpha granules and delta granules, that after activation of alpha granules and delta granules, how alpha and delta granules work and what is their role in coagulation. Then we have discussed about the working of serotonin in coagulation, then working of ADP in coagulation, then working of calcium in coagulation, in which we also have discussed about how EDTA vials work and why EDTA vials are known as calcium chelating agents, what is the meaning of calcium chelation, and what is the role of calcium in the anticoagulants. All we have discussed in this topic. Then we have discussed about the working of platelet derived growth factor in coagulation. Now in part 3rd of hemostasis, in its sequence, we will discuss about the extrinsic pathway of coagulation, right? तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में मेंशन कर दूंगी. पहले आप प्लीज वो फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड को देखिएगा क्योंकि ये पूरा एक सीक्वेंस चल रहा है. जब इस सीक्वेंस को आप अच्छे से समझ लेंगे उसके बाद आपको ये चीज डिटेल में समझ आएगी कि इन सब सीक्वेंस के होने के बाद एक्सट्रिंसिक पाथवे कोगुलेशन के अंदर एक्सट्रिंसिक पाथवे कैसे वर्क करता है, कैसे एक्सट्रिंसिक पाथवे से लास्ट में ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है. सो लास्ट क्लास में हमने हीमोस्टैसिस के अंडर लास्ट में हमने पढ़ा था अबाउट द प्राइमरी प्लेटलेट प्लग. अब है हमारा थर्ड सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग. सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग में क्या आता है? सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन. इसका मतलब देखिए जो प्राइमरी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होती है ना, उसके अंदर सारी प्रिपरेशन होती है. प्रिपरेशन किस चीज की? इस कोगुलेशन की जितनी भी सारी प्रिपरेशन होती है ना, वो प्रिपरेशन सपोर्ट करती है किस चीज को? कोगुलेशन को. तो कोगुलेशन जो एक्चुअल प्रोसेस है कोगुलेशन की, वो किसके अंडर आती है? सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के अंडर आती है. बट उस कोगुलेशन को सपोर्ट करने के लिए जो सारी मैकेनिज्म होती है वो किसके अंडर आती है? प्राइमरी प्लेटलेट प्लग के अंदर आती है, राइट? तो अब क्वेश्चन ये है कि कोगुलेशन का मतलब क्या होता है? Coagulation is the process in which soluble fibrinogen convert into insoluble fibrin strains. इसका मतलब क्या है कि coagulation वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो soluble fibrinogen होता है. soluble का मतलब क्या होता है? घुला हुआ. किस चीज के अंदर घुला हुआ? प्लाज्मा के अंदर. इसका मतलब हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा में घुला हुआ एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है फिब्रिनोजन. तो ये फिब्रिनोजन जब इनसॉल्युबल मतलब अब वो घुल नहीं सकता, इनसॉल्युबल फिब्रिन स्ट्रेन्स के अंदर बदल जाता है, उस प्रोसीजर को कहा जाता है कोगुलेशन. अब देखिए समझिए, जैसे आपके हाथ पे यहाँ चोट लग गई तो चोट लगने के बाद यहाँ पे क्या होता है? एक ब्लड क्लॉट बन जाता है ना, जैसे हम हिंदी में थक्का बोलते हैं. तो वो जो ब्लड क्लॉट है वो वापस आपके ब्लड में, वापस आपके प्लाज्मा में घुलता नहीं है, वापस सॉल्युबल नहीं होता है. आप उसको लास्ट में स्क्रैच करके ऐसे खरोच को उसको क्या कर देते हो? और यहाँ से रिमूव कर देते हो, राइट? तो वही चीज है फिब्रिन स्ट्रैंड जो इनसॉल्युबल नहीं होता प्लाज्मा के अंदर. तो ये चीज समझ आई. कोगुलेशन एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो घुला हुआ फिब्रिनोजन है, किसके अंदर घुला हुआ? प्लाज्मा के अंदर. वो जो घुला हुआ फिब्रिनोजन है वो इनसॉल्युबल फिब्रिन स्ट्रेन्स के अंदर बदल जाएगा, तब हम उस प्रोसेस को बोलेंगे कोगुलेशन. अब जो कोगुलेशन होते हैं वो दो पाथवे से होते हैं, एक तो इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोगुलेशन. देखिए कोगुलेशन का ओवरऑल रिजल्ट क्या है? सब चीज घूम फिर के किस पे आ रही है कि लास्ट में यहां पर बनता है ब्लड क्लॉट, राइट? तो कोगुलेशन का ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा? ब्लड क्लॉट रहेगा. बट कोगुलेशन ब्लड क्लॉट बनने के लिए जो दो रास्ते होते हैं, कोगुलेशन के दो रास्ते होते हैं. एक तो होता है हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे. मतलब एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे दोनों का जो
रिजल्ट है ओवरऑल वो क्या होता है, ब्लड का क्लॉट फॉर्मेशन, मतलब ब्लड का क्लॉट बनता है। लेकिन एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे दोनों पाथवे क्या है, अलग अलग है। अब ये पाथवे किस पे डिपेंड करते हैं कि आपको जो वो वेस्कुलर डैमेज या फिर जो भी डैमेज हुआ है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुई है, तो उस ब्लीडिंग का कॉज क्या रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोagulation इनिशिएट व्हेन वेस्कुलर टिश्यू और एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू गेट डैमेज और ट्रॉमेटाइज्ड। इसका मतलब क्या है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे, कोagulation का एक्सट्रिंसिक पाथवे जब स्टार्ट होगा जब आपकी बॉडी में कोई वेस्कुलर टिश्यू डैमेज होगा या फिर कोई एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू डैमेज हो रहा है या फिर वहां पे कोई ट्रॉमा हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा टिश्यू है, यहाँ पे अगर किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कोई चोट लग गई, कोई डैमेज हो गया, कोई इंजरी हो गई, तो कौन सा पाथवे स्टार्ट होगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होगा। समझ आई ये बात कि अगर आपका कोई वेस्कुलर टिश्यू डैमेज हो रहा है किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, तो वहां पे कौन सा पाथवे स्टार्ट होगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होगा, और लास्ट में वहां भी क्या बनेगा, ब्लड क्लॉट बनेगा। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे क्यों स्टार्ट होगा, इंट्रिंसिक क्यों नहीं हो रहा, वो हम समझेंगे। देखिए होता क्या है, हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं कि हमारे टिश्यू में क्या हुआ है, कोई वेस्कुलर डैमेज हुआ है, राइट। अब जैसे आपके टिश्यू में कोई ट्रॉमा हुआ या फिर इंजरी हुई, आपके टिश्यू में जैसी कोई इंजरी हुई, तो वहां से जो टिश्यू डैमेज हो जाता है ना, वो टिश्यू यहाँ पे रिलीज करता है टिश्यू फैक्टर, जिसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि जब हम पीटी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वहां पे ये वर्ड यूज में लिया जाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो वहां पे आपको इस चीज का सिग्निफिकेंस समझ आएगा कि पीटी टेस्ट में हम इस थ्रोम्बोप्लास्टिन को क्यों यूज में लेते हैं। ठीक है, अभी बस आपको ये समझना है कि आपके टिश्यू में कोई इंजरी हुई, वहां से क्या निकला, एक फैक्टर निकला जिसका नाम है टिश्यू फैक्टर, क्योंकि टिश्यू से निकला इसलिए इसको टिश्यू फैक्टर कहा गया है, और दूसरा नाम है इसका थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये जो टिश्यू फैक्टर होता है ना, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहले होती है इसके अंदर फॉस्फोलिपिड और दूसरा होता है लिपोप्रोटीन। मतलब ये कॉम्प्लेक्स होता है, जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक तो लिपोप्रोटीन होता है और एक फॉस्फोलिपिड होता है, राइट। अब देखिए क्या होगा, ये टिश्यू फैक्टर रिलीज हुआ, इसके अंदर ये दो चीजें प्रेजेंट है, तो होगा क्या कि आपके ब्लड में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, फैक्टर 7, क्लॉटिंग फैक्टर 7 आपके ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट है। जैसे ही क्लॉटिंग फैक्टर 7 लिपोप्रोटीन के साथ जुड़ेगा, वो किस में बदल जाएगा, एक एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर बन जाएगा, राइट। अभी देखो ब्लड में जब ये क्लॉटिंग फैक्टर्स नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, सर्कुलेट कर रहे होते हैं ना, तो ये एक्टिवेट नहीं होते, बट ये किसी चीज के साथ अगर बाइंड हो जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं एक स्मॉल ए से। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहले क्लॉटिंग फैक्टर 7 था, जैसे ही लिपोप्रोटीन से मिला ये क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, और क्या बन गया, ये एक एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर 7। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ब्लड में हमारे क्लॉटिंग फैक्टर 10 भी प्रेजेंट होता है। जैसे ही क्लॉटिंग फैक्टर 10 एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर 7 के साथ जुड़ता है, तो ये यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है और बना लेता है खुद को एक एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर 10A। ठीक है, इस स्टेप के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है, पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, इसके अंदर पहली चीज तो होती है एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर 10A, ये तो पहली चीज हुई। दूसरी चीज इसके अंदर होती है कैल्शियम आयंस। ठीक है, कैल्शियम आयंस कहाँ से आए, हमारे जो डेल्टा ग्रैन्यूल्स है, कुछ कैल्शियम आयंस वहां से आए और कुछ ऑलरेडी ब्लड के अंदर प्रेजेंट थे। तो कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में और यहाँ पे क्या ऐड होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 5, जो कहाँ से आया, अल्फा ग्रैन्यूल्स ऑफ प्लेटलेट्स। इसलिए मैंने उस टाइम आपको ये अल्फा ग्रैन्यूल्स ऑफ प्लेटलेट्स डिटेल में समझाया था, क्योंकि ये जो क्लॉटिंग फैक्टर 5 होता है ना, ये कहाँ से आता है, वो जो प्लेटलेट्स के अल्फा ग्रैन्यूल्स थे ये वहां से आया था। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो प्राइमरी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन तक की जो ये प्रोसेस होती है ना पूरी, वो एक प्रिपरेशन होती है इस कोagulation को सपोर्ट करने के लिए। तो ये यहाँ से चीजें क्या हो रही है, सपोर्ट हो रही है। ठीक है, तभी जाके क्या बन रहा है, लास्ट में फिब्रिन स्ट्रैंड्स बनेंगे। तो यहाँ पे अल्फा ग्रैन्यूल से हमें क्या मिला, क्लॉटिंग फैक्टर 5 मिल गया। उसके बाद अगली चीज यहाँ पे जुड़ती है प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड्स। इसका मतलब क्या है, देखिए टिश्यू फैक्टर में क्या था, दूसरी चीज एक फॉस्फोलिपिड थी ना, तो ये फॉस्फोलिपिड यहाँ पे आके जुड़ता है, प्लस जो वो प्लेटलेट्स वहां पे एग्रीगेट हुई थी, जब हमने प्लेटलेट्स एग्रीगेशन पढ़ा था, वहां से भी क्या निकलता है, फॉस्फोलिपिड निकलता है, वहां से वो प्लेटलेट्स फॉस्फोलिपिड प्रोवाइड कराती हैं। तो वो सारा फॉस्फोलिपिड यहाँ पे आके इकट्ठा होता है, जिसे हम प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। ये 1 2 3 4 ये चारों चीज की प्रेजेंस में क्या बनता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है। ठीक है, अब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन चुका है,
ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हमारे ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर काम करता है और इस प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल देता है, थ्रोम्बिन के अंदर बदल देता है। उसके बाद क्या होता है, हमारे ब्लड में क्या है, फिब्रिनोजन प्रेजेंट है। कहां से आया वो फिब्रिनोजन भी, अल्फा ग्रैन्यूल्स ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ने वहां पे क्या रिलीज करा था, फिब्रिनोजन रिलीज करा था। तो ये थ्रोम्बिन उस फिब्रिनोजन के ऊपर काम करता है और उस फिब्रिनोजन को किस में बदल देता है, फिर फिब्रिन स्ट्रैंड्स के अंदर बदल देता है। और ये फिब्रिन स्ट्रैंड सारे इकट्ठे होके एग्रीगेट होके लास्ट में क्या बनाते हैं, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। ये कैसे इसके अंदर कन्वर्जन होता है वो हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ये एक फ्लो चार्ट है जो स्टेप बाय स्टेप लास्ट में इसका एंडिंग किससे होता है, ब्लड क्लॉट से होता है। यहाँ पे एक्सट्रिंसिक पाथवे क्यों हुआ, क्योंकि एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो स्टेप होता है ना, जो इनिशिएट करता है वो होता है टिश्यू फैक्टर। अगर आपका टिश्यू फैक्टर रिलीज हो रहा है तो आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे चलेगा। और टिश्यू फैक्टर ही क्यों रिलीज हो रहा है, क्योंकि डैमेज कहाँ हुआ है, टिश्यू के अंदर डैमेज हुआ है किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। तो यहाँ पे जो कोगुलेशन हो रही है वो किस वजह से हो रही है, एक्सट्रिंसिक पाथवे की वजह से हो रही है। अब हम एक बार थ्योरी भी रीड कर लेते हैं। जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है कोगुलेशन का, उसका फर्स्ट स्टेप होता है रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर। सबसे पहले वहां पे क्या होता है, टिश्यू फैक्टर रिलीज होता है। तो जैसे आपके कोई वेस्कुलर टिश्यू में, एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू में कोई डैमेज होता है तो वहां से एक फैक्टर रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं टिश्यू फैक्टर, जिसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिन के नाम से भी जानते हैं। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो दो चीज से मिलकर बना होता है, एक तो फॉस्फोलिपिड और दूसरा लिपोप्रोटीन। ये जो फॉस्फोलिपिड होता है कहाँ से डिराइव होता है, सेल मेम्ब्रेन से। देखिए इसका मतलब क्या है, मैंने आपको क्या बोला कि हमारी बॉडी में क्या है, टिश्यू है। टिश्यू किससे मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है। ये टिश्यू फैक्टर इन सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। तो सेल का स्ट्रक्चर इस तरीके से है। सेल के बाहर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। और हमें पता है जब आपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो कि उसके अंदर फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है, ठीक है। तो ये जो टिश्यू फैक्टर होता है ये इसी सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो इस टिश्यू फैक्टर में जो ये फॉस्फोलिपिड होता है ना, ये कहाँ से लिया जाता है, ये सेल मेम्ब्रेन से ही लिया जाता है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये डिराइव किया जाता है सेल मेम्ब्रेन से। और जो लिपोप्रोटीन होता है वो एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। दोनों चीज से मिलकर बना होता है हमारा ये थ्रोम्बोप्लास्टिन। सेकेंड स्टेप होता है कि इसमें जो फैक्टर 7 होता है उसका एक्टिवेशन होता है। कैसे होता है कि जो 7 होता है वो ऑलरेडी हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो जब ये क्लॉटिंग फैक्टर 7 लिपोप्रोटीन के साथ जुड़ता है, ये कौन सा लिपोप्रोटीन है, वो यही थ्रोम्बोप्लास्टिन का लिपोप्रोटीन है। जब इसके साथ जुड़ता है तो जो क्लॉटिंग फैक्टर 7 है वो किस में बदल जाता है, एक एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर 7 के अंदर। थर्ड स्टेप क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10। इसमें क्या होता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर 10 होता है वो ऑलरेडी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। जब क्लॉटिंग फैक्टर 10 किसके साथ जुड़ता है, एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर 7A के साथ, तो क्या बन जाता है, वो एक एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर 10A बन जाता है। उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ये कैसे फॉर्म होता है, इसके अंदर पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनता है। किस किस चीजों का कॉम्प्लेक्स बनता है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर 10A जो होता है वो बाइंड होता है फॉस्फोलिपिड के साथ। फॉस्फोलिपिड कहाँ से आया, जो टिश्यू फैक्टर का एक पार्ट था। कैल्शियम आयंस के साथ बाइंड होता है, वो कहां से आया, जो डेल्टा ग्रेन्यूल्स ने रिलीज करा। और कुछ कैल्शियम आयंस ऑलरेडी ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स 5th इसके साथ ऐड हुआ, वो कहां से आया, अल्फा ग्रेन्यूल से आया। कुछ प्लेटेड फॉस्फोलिपिड्स वहां जाके ऐड होते हैं, वो कहां से आए, एग्रीगेटेड प्लेटलेट से आए। तो पूरा ये सब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। उसके बाद क्या होता है, थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन होता है। वो कैसे होता है कि ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वो प्रोथ्रोम्बिन पे काम करता है। उस प्रोथ्रोम्बिन को फिर वो किस में बदल देता है, थ्रोम्बिन के अंदर बदल देता है। अब लास्ट एक स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन स्ट्रैंड्स की। फिब्रिन स्ट्रैंड्स कैसे बनते हैं, देखिए लास्ट में हमने देखा था कि जो फिब्रिनोजन है वो किस में कन्वर्ट होता है, फिब्रिन स्ट्रैंड्स के अंदर कन्वर्ट होता है। वो कौन करता है, थ्रोम्बिन करता है। देखिए एक्चुअली क्या होता है, हमारे प्लाज्मा में जो ये फिब्रिनोजन प्रेजेंट होता है ना, ये फिब्रिनोजन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है कि इसके अंदर 4 पेप्टाइड्स लगे होते हैं। ये 1, 2, 3 और 4। ये 4 लो मॉलिक्यूलर वेट, मतलब इनका जो वेट होता है वो काफी कम होता है, काफी लो होता है। मतलब ये बहुत कम सीक्वेंस के पेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 क्या लगे होते हैं, ये पेप्टाइड्स लगे होते हैं। बीच में इनके एक बॉन्ड होता है, ठीक है। ये थ्रोम्बिन क्या करता है, इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। जैसे ही बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, ये फिब्रिनोजन जो 4 ग्रुप था ना, वो सब एक एक में टूट जाता है। तो जिसको हम बोलते हैं फिब्रिन मोनोमर्स। तो ये चारों पहले एक साथ जुड़े हुए थे, थ्रोम्बिन ने इनका बॉन्ड तोड़ दिया, जिससे ये 4 अलग अलग क्या बन गए, फिब्रिन के मोनोमर्स बन गए। अब क्या होता है, ये जो फिब्रिन के मोनोमर्स होते हैं ना, इनके पास एक कैपेसिटी होती है, पोटेंशियल होता है कि चारों एक दूसरे से क्या होते हैं, मतलब इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं। कुछ
वर्टिकल डायरेक्शन में अरेंज हो गए, जैसे 4 यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में अरेंज हो गए और 4 ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अरेंज हो गए। तो ये फिब्रिन मोनोमर्स की कैपेसिटी होती है कि अपने आप को अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बन जाता है, फिर एक स्ट्रैंड बन जाता है, एक यहाँ पे एक जाल सा बन जाता है इन फिब्रिन मोनोमर्स का। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग मतलब क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और आपकी ब्लीडिंग इस तरीके से रुकती है। ठीक है, तो इसकी थ्योरी क्या है कि जो फिब्रिनोजन होता है वो एक प्रोटीन होता है जिसमें 4 लो मॉलिक्यूलर वेट के क्या होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, और जब ये इस स्ट्रक्चर में होता है ना तब ये प्लाज्मा के अंदर सॉल्यूबल होता है, लेकिन जब ये इस स्ट्रक्चर में बदल जाता है तब ये इनसॉल्यूबल हो जाता है। इसके स्ट्रक्चर की वजह से ये सॉल्यूबल और इसकी इनसॉल्यूबिलिटी डिपेंड करती है। तो जब ये इस स्ट्रक्चर में था तो ये क्या था, सॉल्यूबल था प्लाज्मा के अंदर। फिर क्या होता है, जो थ्रोम्बिन होता है वो इनके बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देता है और क्या बना देता है, 4 जो ये पेप्टाइड्स है इनको रिलीज कर देता है, एकदम फ्री कर देता है। फिर क्या होता है, ये जो चारों पेप्टाइड्स हैं दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 फिब्रिन मोनोमर्स, जिसमें से क्या हुआ, 4 फिब्रिन मोनोमर्स बन गए। ये तो हम एक फिब्रिनोजन की बात कर रहे हैं, ऐसे कई गुना फिब्रिनोजन्स होते हैं जो टूटते हैं, फिर काफी फिब्रिन स्ट्रैंड्स यहाँ पे अरेंज होते हैं और ब्लड का क्लॉट बनता है। फिर क्या होता है, ईच फिब्रिनोजन मोनोमर के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो पॉलीमराइज हो सकते हैं। पॉलीमराइज का मतलब क्या होता है कि वो इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं और पॉलीमर बन सकता है वहां पर। तो ये पॉलीमराइज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और वहां पे क्या बनाते हैं, फिब्रिन का स्ट्रैंड बनाते हैं। अब ये फिब्रिन स्ट्रैंड क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर इनसॉल्यूबल होता है। द फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन स्ट्रैंड्स रिजल्ट इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड विच इज नोन एज कोगुलेशन। अब जो ये फिब्रिन स्ट्रैंड्स बने हैं इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब यहाँ पे जो ब्लड है उसकी क्लॉटिंग हो जाती है, क्लॉट बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं कोगुलेशन, और आपकी ब्लीडिंग यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। मतलब लास्ट में आपके यहाँ पे क्या बन जाएंगे, इस तरीके फिब्रिन स्ट्रैंड्स बन जाएंगे और आप जिसे आप बोलोगे ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, और आपका कोगुलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा बाय द एक्सट्रिंसिक पाथवे। So yeah, this is all about the extrinsic pathway of coagulation. If you like this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.